اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ آج تیرے اس مقدس دن کو ہم دیکھ سکیں۔ خداوند اس بات کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل بھی کیا ہے کہ تیرے اس مقدس دن میں ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہو سکیں۔ جتنے لوگ خداوند تیری عبادت کے لیے آج یہاں پر آ رہے ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے خداوند تو ہمارے درمیان موجود ہے، اپنی حضوری سے ہر ایک کو برکت دے۔ جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوں گے، ان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند ان میں سے بھی ہر ایک کو چھو دے، تاکہ تیرے چھونے سے ہر ایک شخص برکت پائے۔ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر، تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہماری رہنمائی کر۔ خدا پاک کرو، تو ہماری رہنمائی کر، تو ہماری مدد کر، ہمیں معمور کر، مسا کر، تاکہ خداوند ہمارے خیال اور ذہن تیری طرف لگیں۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ پاک روح کی معموری میں آج تیری حمد و ثنا کرنا، تیرے کلام کو سننا، تجھ سے مانگنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند آج کی عبادت میں جتنے لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ شامل ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان اور برکت پائیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، تو چھو اور برکت دے، ہماری رہنمائی کر، کوائر کے ساتھ ہو، کوائر کی خداوند پاک روح میں تیری طرف سے رہنمائی ہو، تاکہ خداوند پاک روح کی رہنمائی میں حمد و ثنا کرنے میں ہمارے مددگار ہو سکے اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہو سکے۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस के हुक्म पे दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 91 इसका पहला हिस्सा गाएंगे। ज़बूर 91 पहला हिस्सा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि उसने हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया कि आज हम इबादत के लिए जमा हो सकें। इस जगह के लिए भी खुदावंद का शुक्र करेंगे। एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस अदारे को बरकत दे। इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की करे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क को तरक्की दे और इस्तेहकाम आए। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे, पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरी दुनिया में मसीहों को ईमान में मजबूत करे, जिंदा कलीसिया बनाए, सलामती बख्शे और कलीसिया में गवाही का काम हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम अपने सर को झुकाएं, हम का शुक्र अदा करें। नहायत रही मेहरबान प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी रोशनी खाकसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी दी हुई नेमतों बरतों बख्शिशाओं के लिए खुदावंद दिन के लिए खुदा हमारी जिंदगी में एक और नया दिन वक्त दिया। हम बहुत सारे लोगों से अच्छे ना थे जो दिन को देखना चाहते थे, देख ना सके। ये खास तेरी मेहरबानी है जिंदों की ज़मीन पर। खुदा आज तेरा मुबारक सबत दिन है, फजल बख्शा के खुदा हम तेरे ख़ानदान की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं ताकि खुदा हम तेरी इबादत कर सकें, तेरी प्रशिश कर सकें। खुदा हम जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो भी रास्तों में बाफादत होता है, ताकि सब मिलकर खुशी के साथ खुदा हम तेरी इबादत करें, तेरी प्रशिश करें। खुदा हम आज तेरा मुबारक सबत दिन है, आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं, खुदा तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत कर, हर किस्म की दहशत गर्दी से शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखें, ताकि खुदा तेरे लोग खुशी के साथ आज़ादी के साथ खुदा तेरी इबादत करें, तेरी प्रशिश करें। खुदा अपने खादमों को खुदा तू अपने पाक की मामूल से मामूल कर, ताकि जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक खुदा तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम से तेरी कलीसिया की सुरखानी खुराक को शेयर करें और खुदा तेरी कलीसिया इस खुराक को हासिल करके खुदा अपने कामों से अपनी जिंदगियों से खुदा तेरी गवाही तेरा जलाल जाए। अपने खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसके ख़ानदान की खुदा तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते हैं। अपनी कलीसिया के लिए खुदा तेरी बरकत और तेरी सरफराजी को मांगते हैं। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं उनके लिए तेरी मिन्नत करते हैं, तंदुरुस्ती से दे। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं कर, जो बेघर लोग उनको घर नहीं कर, जो बेलाज जोड़े खुदा उनको इलाज जैसे नीमत से माला माल करता। खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र, यहाँ खुदा तूने हमें रखा ताकि हम इसके लिए दुआएं खैर कर सके। खुदा अपने मुल्क की सलामती के लिए, इस्तेकाम के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं, तुम्हारे मुल्क में अमन ईमान सलामती इस्तेकाम को कायम कर। मुल्क के कुनानों को अकल दानाई फैन दे, जो मुल्क की मसाइलन पर काबू पाने के लिए बड़ा फर्ज देता। सबसे कॉलेज कैंपस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तेरे लोगों ने इस कैंपस में इसलिए कायम किया कि इस कैंपस के वसीले से तेरी गवाही और तेरा जलाल जायद हो सके। खुदा तू इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा। खुदा डायरेक्टर के लिए, वाइस डायरेक्टर, रजिस्ट्रार के लिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए, तमाम फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ और उन तमाम लोगों के लिए जो सदारे से मुंसलिक हैं, सब के लिए खुदा तेरे फजल को मांगते हैं, तेरी हिकमत को मांगते, तेरी दानाई को मांगते, तेरे फजल को मांगते, ताकि खुदा वो और इस अदारे में बढ़ चढ़ कर अपने काम को जी जान के करे कि खुदा तेरे लिए करते और इस अदारे की तरक्की का सुबह बढ़ते। खुदा तो इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी बरकत से मालामाल करो, अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। दान तूने आलमगीर कलीसिया के तेरा शुक्र अदा करते, तूने अपनी कलीसिया को ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, अंजीर की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का सबब। खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे के इस काम को बड़ी जान शान के साथ सर अंजाम दे,
ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे। तेरा जल्द दुनिया में आना तमाम मसीह कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान हैं, जंगो जदर में, ज़ाफ़सानी में, पस्त में, बेरोजगारी की हालत में। खुदाम तू अपनी कौम को सरबलंद कर, सरफराज कर, हिकमत से बार, दानाई से बार, ईमान में मजबूत कर। जिस तरह तूने अपनी कौम इसराइल को बरकत दिए, सरफराज दिए, सरबलंद किए हुए, तेरी बरकत तमाम मसीह कौम पर, मसीही लोगों पर ना हो। खुदाम इबादत के बाकी से मैं तुम्हारी हिफाजत करूँ और खुदाम तेरा पाक तू तेरे लोगों को आज की इबादत के वसीले से बरकत। कोई आज खाली और ना लौटे बल्कि तेरे कलाम की बरकतों से माला माल कर जाए और खुदाम अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से तेरी गवाही, तेरा जलाल जाहिर करने का खुदाम हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। अपने बचाने वाले खुदाम यीशु मसीह के कुदूस और जलाली नाम की वसीला से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 145 लाएंगे। नहायत रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान। ज़बूर नंबर 145, ज़बूर नंबर 145। दूजा हिस्सा है। Look
एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार मुतफिक होते हैं, यीशु के नाम से खुदा से मांगते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। हमारे लिए मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए मिलकर मुतफिक होकर दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा से मौजज़ात हासिल करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसके नाम में कुदरत है, जिसे तूने वो नाम बख्शा है जिस सब नामों से आला है। और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तू अपने बेटे यीशु मसीह में हमें फतह बख्शता है, क्योंकि तेरे बेटे यीशु ने मौत पर फतह पाई है, उसमें जिंदगी है। और तेरा शुक्र हो खुदावंद के तू अपने बेटे यीशु में हमें भी जिंदगी देता है। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूर में मौजूद हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। जितने लोग खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से फतह मांगते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से फतह का ऐलान करते हैं और हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से फतह पाते हैं और शिफा मांगते हैं। खुदावंद तुम्हें छू और शिफा दे। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए भी यीशु के नाम में मौजज़ात मांगते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई सुनील उमरदराज के लिए, इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं अनस पॉल साहब के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेज आसिया के लिए, मिसेज लवीजा के लिए, इसी तरह से जरूशा बेटी के लिए, मिसेस सरोया के लिए, भाई हीरा के लिए, मिसेस शमीम के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद इसी तरह और भी जितने लोग जो बीमारी की हालत में, उन सब के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं। खुदावंद तू हर एक को जानता है, उनकी तकलीफ से वाकिफ है, उनकी बीमारी और कमजोरी से वाकिफ है। खुदावंद एक एक को छू, जो नाम हमने तेरी हुजूरी में पुकारे हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाए। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए तेरी तरफ से औलाद की बरकत मांगते हैं। तूने छू खुदावंद, उन्हें औलाद की नेमत दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन सब की जिंदगी में मौजज़ात हो। खुदावंद हम सबको वबाई अमराज से, कोरोना से और मौसमी असरात से जो बीमारियां पैदा कर रहे हैं, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से हमें महफूज रख। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो, हम सब की बीमारियों से, हादसात से, परेशानियों से हिफाजत कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर क्वायर के साथ मिलके हम दो सना में शामिल हों ताकि ये गीत आप भी सीख सकें।
हासिल किया, मेरी लियाकत नहीं, तूने सब कुछ दिया, मेरी ताकत नहीं। जो कुछ हासिल किया, मेरी लियाकत नहीं, तूने सब कुछ दिया, मेरी ताकत नहीं। शुक्र तेरा मैं करूं, शुक्र तेरा मैं करूं, रूह से भर दे मुझे, मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे। बात है नाक़िस मेरी, मैं खुद कुछ भी नहीं, तुझ में रहकर खुदा पाऊं मैं जिंदगी। बात है नाक़िस मेरी, मैं खुद कुछ भी नहीं, तुझ में रहकर खुदा पाऊं मैं जिंदगी। शुक्र तेरा मैं करूं, शुक्र तेरा मैं करूं, रूह से भर दे मुझे, मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे। तूने सब कुछ दिया, इसके लायक नहीं, मुझ पे बस किया, मोहब्बत है ये तेरी। तूने सब कुछ दिया, जिसके लायक नहीं, मुझ पे बस किया, मोहब्बत है ये तेरी। शुक्र तेरा मैं करूं, शुक्र तेरा मैं करूं, रूह से भर दे मुझे, मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे, मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे। शुक्र तेरा मैं करूं, शुक्र तेरा मैं करूं, रूह से भर दे मुझे, मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे। चंद एक ज़रूरी एलानात हैं वो आपके गोशगुजार करता हूँ। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, इसे हम यूसीएच के नाम से जानते हैं, उसमें
इस हफ्ते में 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक फ्री आई कैंप हो रहा है। इस फ्री आई कैंप में आंखों का चेकअप भी फ्री है और उसके बाद जो सर्जरी है सफ़ेद मोतिये की या कोई किसी भी किस्म की आंखों की सर्जरी है वो भी फ्री है। ये 4 दिन का कैंप है, मंगल से लेकर जुमे तक इस हफ्ते में होगा और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का वक्त है जिसमें आप लोग जा सकते हैं और चेकअप भी फ्री है और इसके साथ साथ जो सर्जरी है वो भी जदीद तरीके के साथ सर्जरी है लेंस की और लेंस डालने की, उसमें ज़रूर आप उससे फ़ायदा उठाएं। और जो आपके अजीज़ हैं जो चेकअप करवाना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं आँखों का, उन्हें भी ज़रूर बताएं ताकि इस सहूलत से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही शादी की पुकारें हैं। जुनेशिया मंजूर, डॉक्टर मंजूर मसीह, उम्र 29 साल, हालत कमवारी, मक्का कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी। जेरी आशर जोएल वर्ल्ड जोएल बॉबी, उम्र 31 साल, हालत कमवारा, शिकागो USA के रहने वाला के साथ 29 जनवरी 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। कोमल मुनव्वर, डॉक्टर मुनव्वर ज़िया, उम्र 31 साल, हालत कमवारी, मॉडल टाउन लाहौर की रहने वाली की शादी। सूज लावेंटे वर्ल्ड सूज जुल्तान, उम्र 25 साल, हालत कमवारा, बुदापेस्ट हंगरी के रहने वाले के साथ 4 फरवरी 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम कलाम मुक़द्दस को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 354, 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है। गीत नंबर 354, 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है। हम खड़े होकर ये गीत गाएंगे और इसके गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। पानी और उसे देगा जन्म, जन्म से
जिंदगी देते रहो, तेरी बरकत सजाती है, खुदावंदी सिखाती है, खुदावंदी सिखाती है। उसका नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा, तेरी बरकत सजाती है, खुदावंदी सिखाती है, खुदावंदी सिखाती है। कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सुनेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। The Gospel of Luke chapter 2 verses 36 to 38। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। तिलावत करने में हमारे रहनुमाई एल्डर कामरान साहब करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और आशर के कबीला में से हना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें, आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो जिंदा है, जो असर रखता है, जिंदगी देता है। खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाकिस है, लेकिन तेरा पाक रूह ही हिकमत और दानाई देता है, ज़हनों को खोलता है ताकि तेरे कलाम से हम बरकत पा सकें। खुदावंद अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। खुदाए पाक रूह तू मेरी मदद और रहनुमाई कर। खुदाए पाक रूह तू कलाम कर। तेरी मदद और रहनुमाई के वसीले से आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से आमीन। हमने क्रिसमस के गुजर जाने के बाद कुछ वक्त के लिए एपिफनी की सीरीज जो है उसको चुना है और गुज़श्ता से व्यवस्था इतवार को हमने एपिफनी के हवाले से सीखा था और एपिफनी के बारे में मैंने बताया था कि एपिफनी जो है ये किसी इलाही ज़ात का यानी खुदा का इंसानी हवास को नजर आना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उसको बयान करता है। जो एपिफनी का लफ्ज है उसका मतलब है ज़हूर, जाहिर होना, खुदा का जाहिर होना। ये खास तौर पर खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि इलाही ज़ात का इस सूरत में जाहिर होना कि इंसान उसको महसूस कर सके। पुराने नामे में मैंने
किया था कि कुछ मिसालें में इसकी मिलती हैं कि खुदा झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में जाहिर हुआ कि मूसा उसे देख सके। खुदा आवाज के जरिए से जाहिर हुआ कि लोग उसकी आवाज को सुन सकें कि खुदा ये कह रहा है, खुदा कलाम कर रहा है। खुदा बादल में इस्राएल के साथ रहा और इस्राएल ने देखा कि खुदा उनके साथ है। खुदा आग के सतून में उनके साथ रहा। यानी खुदा का इंसानों पर जाहिर होना किसी ऐसी सूरत में जिसको इंसान देख सके, ये एपिफनी है। और मैंने ये भी अर्ज किया कि क्रिसमस पर हम जब तजस्सुम के बारे में सीखते हैं, इनकारनेशन के बारे में सीखते हैं कि खुदा ने जिस वक्त तैयार किया, तो एपिफनी जो है वो साया है इनकारनेशन का। यानी एपिफनी जो है जिसमें खुदा ने इंसानों पर अपने आप को जाहिर किया मुख्तलिफ सूरतों में, वो इशारा है नए अहदनामे में कि खुदा मुकम्मल तौर पर अपने आप को इंसानों पर जाहिर करेगा। और उसने अपने बेटे यीशु में इंसानों पर अपने आप को जाहिर किया। हमने उस अतवार मजूसियों के बारे में देखा कि गैर कौम के लोगों पर खुदा जाहिर हुआ। उन्होंने बादशाह की सूरत में यीशु को कबूल किया, बादशाह की सूरत में यीशु को देखा और उस पर ईमान लाए, उसको सिजदा किया और नजराने पेश किए। आज का जो हवाला तिलावत किया गया है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है, उसी सीरीज में है जिसमें खुदा ने अपने आप को इंसानों पर जाहिर किया। फर्क ये है कि उस दिन जिन पर खुदावंद जाहिर हुआ गुज़श्ता से पेवस्ता अतवार में, जिसमें मजूसियों के बारे में हमने सीखा, वो गैर कौम के लोग थे। यहां पर इस हवाले में और उससे पहले के हवाले में जिसकी तलावत गुज़श्ता अतवार की गई शमऊन के किरदार के हवाले से, ये दोनों खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं। यानी पहले मजूसी जिन पर खुदावंद जाहिर हुआ, जिन्होंने खुदावंद को देखा, खुदावंद को कबूल किया। उसके बाद आज जो कैरेक्टर है हन्ना, और इसी तरह से शमऊन जो है, जो कि एक रास्तबाज शख्स, खुदातरस शख्स था, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, ये खुदा पर ईमान रखने वाले लोग थे। और आज हम सीखेंगे कि हम जो ईमानदार लोग हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जब हमें यीशु मिले तो हमारी जिंदगी में उसका असर क्या है, इफेक्ट ऑफ या इंपैक्ट ऑफ सीइंग जीसस, इंपैक्ट ऑफ नोइंग जीसस इन आवर लाइफ। हम इसको आज देखेंगे कि वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते थे, वो लोग जो खुदा पर आज भी ईमान रखते हैं, उनकी जिंदगी में अगर यीशु है, उनकी जिंदगी में यीशु जाहिर हुआ है, उन्होंने यीशु को पाया है, तो उनकी जिंदगी पे उसका असर क्या हो। हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं। इसी तरह यहूदी लोग हन्ना और इसी तरह शमऊन, ये लोग खुदावंद का इकरार करते थे। और दोनों के बारे में लिखा है कि वो शमऊन जो है वो भी इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, और इसी तरह से हन्ना के बारे में लिखा है कि वो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर लोगों में शामिल थी। उनके साथ उसकी फेलोशिप थी। जो लोग समझते थे, ख्याल करते थे कि मसीहा आएगा और मसीहा का इंतजार कर रहे थे, उनका ईमान था कि खुदा उनकी जिंदगी में काम करेगा। इसी तरह हम भी ये इकरार करते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। इसलिए आज एपिफनी के हवाले से ये हवाला हमें तैयार करेगा कि अगर खुदावंद को हमने अपनी जिंदगी में पाया है तो उसका असर हमारी जिंदगी में क्या है। यहां पर दोनों लोग, जो हन्ना है और शमऊन, वो खुदा के बहुत करीब हैं। शमऊन के बारे में लिखा है गॉड फेयरिंग है, गॉड फेयरिंग है, खुदा तरस है, खुदा से डरने वाला है, राइचियस है, रास्तबाज है, और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर है। यानी वो मसीहा का इंतजार कर रहा है, रास्तबाज है, ईमान में बड़ा मजबूत है, जरूर ये शरीयत पर पूरे तौर पर अमल करने वाला शख्स होगा। हन्ना जो है
84 बरस से बेवा है, हैकल से जुदा नहीं होती, रोजों और दुआओं के साथ हैकल के साथ जुड़ी हुई है। ईमानदार खातून है, मजबूत ईमानदार खातून है। शमौन के बारे में लिखा है कि रूहुल कुदस उस पर था। इस ईमान के बावजूद कमी मौजूद है। कमी किसकी है? मसीहा की, कि वो उसको अभी तक देख नहीं सके। खुदा के बहुत करीब होने के बावजूद they were waiting for the Messiah, मसीहा की कमी है। उनकी जिंदगी में मसीहा की कमी मौजूद है, जिसके लिए बेचैन है, जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तमाम खूबियों के बावजूद जो खुदा को खुश करने के लिए खुदा का कलाम बता रहा था, वो उनमें मौजूद है। कि रोजे में, दुआ में ठहरने वाले लोग, खुदा तरस लोग, इस्राएल की तसल्ली के मुंतजर हैं, ये भी ईमान रखते हैं कि खुदा अपने वादे को पूरा करेगा, रास्तबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद मसीहा की कमी है कि अभी तक मसीहा को नहीं देखा। इसमें एक बड़ी ही खूबसूरत बात पूरी दुनिया के लिए बड़ी अहम है कि तमाम अच्छाइयों के बावजूद भी, तमाम खूबियों के बावजूद भी, जिस इंसान की जिंदगी में मसीहा नहीं है, जिस इंसान की जिंदगी में यसू नहीं है, उस इंसान की जिंदगी में हकीकी इत्मीनान नहीं है। क्योंकि हकीकी इत्मीनान, हकीकी तसल्ली, नजात दुनिया के लिए यसू के वसीले से मुहैया की गई है। मुकद्दस लूका के वसीले से अमाल की किताब लिखी गई। अमाल की किताब के 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं रखा गया। दुनिया के लिए सिर्फ एक ही नाम है, तमाम तर खूबियों के बावजूद, तमाम तर ऐसी बातों के बावजूद जिसमें इंसान की तारीफ की जा सके। जब तक जिंदगी में यसू नहीं है, जिंदगी में हकीकी इत्मीनान नहीं है। और इस शख्स शमौन ने यसू को अपनी गोद में लिया और उसने कहा कि अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। उसे ये आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। जब उसने यीशु को देखा, उसे अपनी गोद में लिया, तो मौत के मरने के लिए तैयार है। इत्मीनान, पीस देखें उसकी जिंदगी में। मरने के लिए तैयार होना आसान काम नहीं है। और वो कहता है कि अब तो अपने कौल के मुआफिक अपने खादम को सलामती से रुखसत करता है। He was ready to die, क्योंकि क्यों? मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। I have seen salvation, मैंने यीशु को देख लिया है। अब मेरी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान है, कोई खौफ नहीं रहा। तमाम तर खूबियों के बावजूद हकीकी इत्मीनान यीशु के वसीले से है। और खासतौर पर मुकद्दस मत्ती की अंजील के 19वें बाब में एक दौलतमंद शख्स की मिसाल है जो कि जवान है। उसकी खूबियां बयान की गई हैं कि वो दौलतमंद शख्स था और लड़कपन से सारी शरीयत पर अमल करता आया था। कितना अच्छा शख्स होगा, जवान कितना अच्छा होगा कि लड़कपन से पूरी शरीयत पर अमल कर रहा है। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 19वें बाब में इस शख्स का बयान है। और जब हम इसको देखते हैं कि वो यीशु के पास आया है, तो उसके बावजूद उसका एक सवाल जो है, बेचैनी उसकी जिंदगी में देखे। 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत, उसमें उसने आकर कहा, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। जब यीशु ने उसे शरीयत पर, हुक्मों पर अमल करने का कहा, तो उसने कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है। मुकद्दस मरकज की इंजील में लिखा है कि मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। लेकिन फिर भी इसका सवाल ये है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसकी जिंदगी में अभी भी वो बेचैनी मौजूद है। सारे हुक्मों पर अमल करने के बावजूद, सारी शरीयत पर अमल करने के बावजूद, रास्तबाज शख्स, उसकी जिंदगी में ये बेचैनी है कि मैं कैसे खुदा को खुश करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। इत्मीनान नहीं है। और यीशु ने आखिरकार उसको कहा कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे
अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल सबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हमेशा की जिंदगी, हकीकी इत्मीनान, बेचैनी का खात्मा यीशु के पीछे आने में है। उस शख्स ने, शमौन ने यीशु को गोद में लिया, और ये जो गोद में लेने के लिए जो लफ्ज है उसका एक खास मानी जो है वो ये भी है कि किसी चीज को, किसी शख्स किसी भी चीज को अपने अपने साथ ले लेना, ढांपना, किसी चीज को कवर कर लेना, ये एक मानी भी इसका लिया गया है, इसका मफहूम लिया गया है कि किसी भी चीज को ढांप लेना, अपने साथ कर लेना, अपने साथ मिला लेना। और उसने यीशु को जब गोद में लिया तो उसकी जिंदगी में हम इत्मीनान देखते हैं। मैंने देख लिया निजात दहिंदा को। अगर हमने यीशु को पाया है तो हमारी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान है। मेरी और आपकी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान यीशु को पाने के वसीले से है। बहुत अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत नेकियां करने की कोशिश कर ले, इंसान कमजोर है। इंसान अपनी कोशिश से अपनी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान नहीं ला सकता, क्योंकि हकीकी इत्मीनान यीशु के पास है। मैं एक दिन इत्मीनान पीस के हवाले से पढ़ रहा था, और एक खुदा के खादम ने कहा है कि हकीकी इत्मीनान क्या है, पीस क्या है। उसने कहा कि हकीकी इत्मीनान ये है कि इंसान तूफान में भी कश्ती में सो जाए। और आपको ये वाकया याद आया कि कौन तूफान में कश्ती में सोया था? कौन सोया था? यीशु। इंसान नहीं सो सके थे तूफान में। इत्मीनान किसके पास है जो कश्ती में तूफान में सोया हुआ है? यीशु के पास, जिसने उठकर तूफान को, आंधी को, हवा को झिड़का और लिखा कि अमन हो गया, पीस हो गया। जिसके पास पीस है वही तूफानों में भी इत्मीनान के साथ रह सकता है। और हकीकी इत्मीनान यीशु के पास है जो तूफानों में भी उसको प्रभारी सोया हुआ। वो कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं, इंसानों की जिंदगी में खौफ, लेकिन जो तूफानों पर अख्तियार रखता है उसी के पास हकीकी इत्मीनान है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में अगर यीशु है, हमारी जिंदगी में यीशु जाहिर हुआ है, हमने यीशु को पाया है, तो मेरी और आपकी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान है। मेरी और आपकी जिंदगी में सलामती, हकीकी तौर पर इत्मीनान का आना, बेचैनी का खात्मा इसी सूरत मुमकिन है कि मैं और आप यीशु को अपने साथ ले लें, यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें, ताकि इत्मीनान, यीशु का हमारी जिंदगी में जाहिर होना हमारी जिंदगी में न सिर्फ इत्मीनान लाता है, हमारी जिंदगियों में इस बात को पुख्ता करता है कि ये निजात जो यीशु के वसीले से है, ये सारी दुनिया के लिए है। यहूदियों के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। यहूदी सिर्फ निजात दहिंदा या मसीहा को अपने लिए समझते थे कि मसीहा सिर्फ यहूदियों के लिए है। निजात, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसके लोगों के लिए है। लेकिन इस शख्स ने क्या इकरार किया? शमौन ने जब यीशु को अपनी गोद में लिया तो उसने मेरी आंख देख ली है जो तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। उसने खुदा की मोहब्बत का इकरार दूसरे लोगों के लिए भी किया है। खुदा की नजात का जो की बख्शिश जो है उसका इकरार उसने दूसरे लोगों के लिए भी किया है। खुदावंद यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में आना, हमारा खुदावंद यीशु मसीह को पाना हमें दूसरों को भी खुदावंद के पास लाने के लिए तैयार करता है, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के लिए फिक्र करने के लिए, दूसरों की निजात के लिए यीशु का निजात दहिंदा होने का इकरार जो है वो हमारी जिंदगी में पैदा करता है। ये निजात जो यीशु के वसीले से है वो सिर्फ मेरे और आप सब के लिए नहीं है, चंद मसीही खानदानों तक महदूद नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही इस निजात में शामिल हो सकते हैं। खुदा का निजात का मंसूबा, निजात की बख्शिश यीशु के वसीले से पूरी दुनिया के लिए है, और इसका इकरार यीशु के हमारी जिंदगी में होने के वसीले से है। हमारा दिल बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिल दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा हो जाता है कि दूसरे लोगों से भी हम
दूसरे लोगों की निजात के लिए भी हम फिक्रमंद होते हैं। वैसे तो इंसानी फितरत है, बतौर इंसान हम जिस खित्ते में रहते हैं ये मजहबी तौर पर सख्त खित्ता है। हमारे फितरी तौर पर इस खित्ते में जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मजहबी तौर पर सख्त हैं और दूसरे शख्स को कबूल करने में मुश्किल या हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। ये सिर्फ किसी एक मजहब या फिरके के साथ नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो इस खित्ते में आपको हर शख्स इसी तरह का नजर आएगा कि दूसरे शख्स को कबूल करना, दूसरे शख्स का ख्याल के बारे में सोचना मुश्किल महसूस होता है। लेकिन मसीही ईमान, यीशु का हमारी जिंदगी में आना हमें तैयार करता है कि हम दूसरे लोगों को भी यीशु के वसीले से निजात के लिए कबूल कर सकें, हम दूसरे लोगों से भी मोहब्बत कर सकें। लेकिन यहूदियों में जिस दौर में यीशु उस दुनिया में आया, उन लोगों में आया, अपने लोगों में, उन लोगों में यह सोच नहीं थी। वो गैर कौमों को और गुनाहगारों को निजात में कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। फरीसियों और फकीहों की मिसालें कि अगर यीशु किसी गुनाहगार के पास गया है तो उन्होंने कहा कि ये तो गुनाहगार के हां जा ठहरा, जा उतरा, गुनाहगारों के साथ खाना खाता है, फरीसियों के साथ महसूल लेने वालों के साथ खाना खाता है, ये गुनाहगार है और ये गुनाहगारों के साथ खाना खाता है, इसलिए ये भी गुनाहगार है। उन्होंने यीशु को तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि वो ये समझते थे कि खुदा की निजात सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रास्तबाज हैं, जो शरीयत पर अमल करते हैं, जो यहूदी हैं। ना तो महसूल लेने वाले उनमें शामिल हो सकते हैं, ना गुनाहगार उसमें शामिल हो सकते हैं, ना ही जो लोग गैर कौमों में से हैं वो इस निजात में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यीशु को जिसने पाया, जो यीशु पर ईमान ले आया, वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी निजात को जरूरी समझता है। अमाल की किताब में शागिर्दों का गैर कौमों के पास जाना, मुकद्दस पतरस का रोया के बाद कॉर्नेलियस के पास जाना और कॉर्नेलियस को मसीह के पास लेकर आना, और बहुत से लोगों को जो कॉर्नेलियस के साथ जिन्होंने यीशु को कबूल किया, उनका यीशु पर ईमान लाना पतरस के इस ईमान को मजबूत करने का बायस बना कि निजात दुनिया के हर इंसान के लिए है और उसने खुदा के इस मंसूबे को कबूल किया। पहले वो गैर कौमों में जाने के लिए तैयार नहीं था। मुकद्दस पतरस भी इस ईमान में मजबूत था इस हद तक कि निजात जो है वो यहूदियों के लिए है। लेकिन रोया के बाद जिसमें उसको कॉर्नेलियस के पास जाने का हुक्म हुआ और उसके बाद वो कॉर्नेलियस के पास गया और कॉर्नेलियस ने यीशु को कबूल किया और उसके बाद दुआ करने के वसीले से रूह कुदस लोगों पर नाज़िल हुआ। वो गैर कौमों पर रूह कुदस का नज़ूल हम अमाल की किताब में देखते हैं, जिससे यह अंदाजा होता है कि पतरस भी इस बात के लिए तैयार हुआ और उसने वापस आकर यरूशलेम में इस बात की रिपोर्ट की, बताया दूसरे साथियों को, ईमानदारों को, बुजुर्गों को कलीसिया के कि किस तरह रूह कुदस गैर कौमों पर नाज़िल हुआ है। और इस तरह से उसने ये इकरार किया कि निजात दुनिया के लिए है। शमौन ने ये इकरार किया कि निजात पूरी दुनिया के लिए है। खुदा की मोहब्बत दुनिया के लिए है, गुनाहगारों के लिए है। जब हमारी जिंदगी में यीशु होता है, जब हम यीशु को पा लेते हैं, यीशु को मिलते हैं, यीशु हमारी जिंदगी में अगर जाहिर हुआ है, तो हमारी जिंदगी में भी दूसरे लोगों के लिए जो गैर मसीही हैं उनके लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। दूसरे लोगों के निजात के लिए दुआ करने का जिम्मेदारी जो है वो हमें पूरी करनी। इसी तरह इस हन्ना ने जब यीशु उस पर जाहिर हुआ, उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी है। वो लिखा है उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, थैंक्स गिविंग। और खास तौर पर शुक्रगुजारी हम दुनिया की चीजों के लिए बड़ी करते हैं। हर दुनियावी बरकत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। दावतें, फेलोशिप्स, शुक्रगुजारी की दुआ घरानों में होती है, लोग अपने घरों में इबादत का एहतमाम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है? सबसे बड़ी शुक्रगुजारी मेरी और आपकी रूहानी निजात है। मेरी और आपकी निजात के लिए सबसे बड़ा सबब है कि हम शुक्रगुजारी करें। खुदा की शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा और अहम जो सबब है, जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए, वो निजात है। अगर हमारी जिंदगी में निजात है
अगर हमने यीशु को पा लिया है तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी बख्शिश है, सबसे बड़ी बरकत इंसान को खुदा की तरफ से जो मिली है वो यीशु मसीह है। जिसने यीशु को पा लिया उसकी जिंदगी में यही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। दुनियावी चीजें आर्जी हैं। ये अमीर शख्स जो यीशु के पास आया और उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, दौलत भी है, ईमानदार मालदार भी है, तो यीशु ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, जहां अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। इस बात से यीशु ने उस शख्स पर यह जाहिर किया कि सबसे बड़ी बख्शिश निजात की और हमेशा की जिंदगी की बख्शिश है। सबसे बड़ी बरकत खुदावंद यीशु मसीह खुद है जो हमारी जिंदगी में है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु है तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बरकत है। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे पहले इस बरकत के लिए खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगते रहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये खुद भी कहा कि पहले इसकी रास्तबाजी, इसकी बादशाही की तलाश करो, तो फिर ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। यीशु की बरकत सबसे बड़ी बरकत है, उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहने की जरूरत। और उसके बाद 38वीं आयत में हन्ना जो है वो खुदावंद की जो उसने जब खुदावंद को देखा उसकी गवाही देने वाली बन गई। जो इस्राएल की तसल्ली के छुटकारे के मुंतजर थे उनसे उसकी बाबत बातें करने लगी। यीशु को हमारी जिंदगी में पाना, यीशु को देखना, यीशु का हमारी जिंदगी में आना हमें गवाही के लिए तैयार करता है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में गवाही नहीं है तो फिर हमारे ईमान में दोबारा से हमें जांचने की जरूरत है, कमी है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी से यीशु लोगों को नजर नहीं आ रहा तो फिर हमने यीशु को पूरे तौर पर पाया ही नहीं। ये जरूर आज अपनी जिंदगी में गौर करें, जिन्होंने यीशु को पाया, जिन्होंने यीशु को देखा, उनकी जिंदगी बदल गई, वो गवाही देने वाले बन गए। इस क्रिसमस की पूरी स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स हैं सभी को देख लें। चरवाहों को देखें, चरवाहों ने देखा जो कुछ उन्हें कहा गया था वो देखा, फरिश्ते ने जो बताया था उन्होंने जाकर देखा और उस जो कुछ उन्होंने देखा उसके बारे में लोगों को बताया। इसी तरह से जब शमऊन ने भी यीशु को देखा उसने गवाही दी। हन्ना ने यीशु को देखा, दूसरे लोगों से उसकी बाबत बातें करने लगी। जो यीशु को देखता है उसकी जिंदगी में तब्दीली आती है कि वो गवाही देता है। जो यीशु को पाता है उसकी जिंदगी में गवाही होती है। अगर हमारी जिंदगी में गवाही नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर यीशु भी नहीं है। इसी तरह से यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में एक सामरी औरत के साथ यीशु की बातचीत है। सामरी औरत यीशु से बात करती है, यीशु ने उस पर अदा किया, उसके खता को, उसके गुनाह को भी। आखिरकार उसने यीशु को कबूल किया और जाकर अपने लोगों को उसने कहा कि एक शख्स क्रिस्तुस मिल गया है जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। और उनको भी लेकर आई, उन्होंने भी यीशु को सुना। उन्होंने कहा पहले तो हमने सुना था, अब हमने देख लिया है। और वो लोग यीशु पर ईमान ले आए। उस गुनाहगार औरत को जब यीशु मिला उसकी जिंदगी में गवाही हुई और न सिर्फ वो खुद यीशु के पास आई और बहुत से लोगों को यीशु के पास लाने का सबब बन गई। इसलिए मेरे अजीजों, आज क्रिसमस के बाद के जो दिन हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं, जो पहला क्रिसमस जो यीशु मसीह की पैदाइश पर मनाया गया, उसके साथ अपने आप को अपना मुआसना करें कि जब पहली दफा यीशु को देखा लोगों ने, जब यीशु को पाया लोगों ने, यीशु जाहिर हुआ तो उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली थी। हम में से हर एक ने कितने क्रिसमस मना लिए, किसी ने 40, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 50, 60। तब्दीली क्या है? यीशु हमारी जिंदगी में जाहिर हुआ है, यीशु को हमने पाया है, तो हमारी जिंदगी में तब्दीली क्या है? पहला क्रिसमस जिसके बाद जिसने भी यीशु को देखा उसकी जिंदगी में तब्दीली क्या थी और आज हमारी जिंदगी में तब्दीली क्या है, इसको हमें देखने की जरूरत है। हमने ये खुदा के लोगों पर जब यीशु जाहिर हुआ तो उनकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई वो देखी है। उनकी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान आ गया, उनकी जिंदगी में पीस, जो यीशु को देख रहा है, यीशु को पा रहा है, उनकी जिंदगी में शुक्रगुजारी है,
उनकी जिंदगी में दूसरी कौमों के लिए मोहब्बत है, उनकी जिंदगी में गवाही है। इन चारों बातों को जरूर अपनी जिंदगी में देखें। अगर मैंने और आपने यीशु को पाया है तो हमारी जिंदगी में ये चारों बातें होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान हो, दुनियावी चीजों का खौफ, ताकि मौत का खौफ भी यीशु को पा लेने से खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत हो, हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी हो और हमारी जिंदगी में गवाही हो। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर डैनियल साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हुजूरी को महसूस करें। कादर मुतलक असली रब्बी खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम बड़ी आजिज़ी, इंसारी और हलीमी के साथ तेरे सामने हाजिर हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में आज मौका बख्शा कि हम तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तुत कर सकें, तेरी हमदोस्ताइश के गीत कह सकें और खास कर खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से तेरे पाक कलाम की बातें सुन सकें। खुदावंद हम आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिसके वसीला से खुदावंद हमने सीखा है कि जिसने यीशु को पाया है उसने गवाही दी है। खुदावंद तू हम सबको तौफीक और बरकत बख्श दे कि हम सच्चे दिल से तुझे तस्लीम करें, तुझे अव्वल दर्जा दें और दूसरों के सामने तेरी गवाही का सबब बने, बहुत से लोगों के लिए बरकत का सबब बने और बहुत से लोगों के लिए खुदावंद तेरी गवाही का सबब बन सकें। खुदावंद मिन्नत करता हूँ आज जितने लोग तेरी पाक हज़ूरी में मौजूद हैं इन सब को नाम बेनाम बड़ी बरकत बख्श दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत बख्श दे और खुदावंद उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पर मिन्नत करता हूँ जो बीमार हैं, तरह तरह के मसाइल में मुब्तला हैं और तेरे घर में नहीं आ सके। खुदावंद तो उनको उनकी बीमारी से, उनके दुखों से रहाई बख्श ताकि खुदावंद वो भी तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तश कर सकें, तेरी हमदोस्ताइश कर सकें। खुदावंद जिस तरह तो गुज़श्ता ज़िंदगी में हमारे साथ रहा, मिन्नत करते हैं आने वाली ज़िंदगी में और आज सारा दिन भी तू हमारी रहनुमाई करना, हमारे साथ होना और हमें हर तरह के दुख से, मुसीबत से, आजमाइश से महफूज रखना खुदावंद, ताकि हम तुझ में महफूज रहकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बने। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 458 गाएंगे। 458 सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 458। तेरे लिए है।
सिफारिश यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी रहनुमाई की, हमने तेरी हमदो सना के गीत गाए, तेरे कलाम को सुना, तुझसे मांगा है और इसी तरह खुदावंद ये हदिया जात भी तेरी हजूरी में लाए हैं जो तेरी दी हुई बरकत में से हमने तुझे लौटाए हैं। खुदावंद इन तमाम हदिया जात को तू खुदावंद कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम सभी बरकत पाएं। इस हफ्ते में हम महफूज रहें, हादसात से, बीमारियों से महफूज रहें। हमारी कलीसिया को दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर भी ईमान की मजबूती और खुशहाली बख्श दे। खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हमारी कलीसिया में से जो लोग बेरोज़गार हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनके लिए रोज़गार की बरकत मांगते हैं और तेरा फजल तेरे लोगों पर मांगते हैं ताकि तेरे लोग बरकत पाएँ, खुशहाली भी हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद हमारी कलीसिया में हमारे जवान बेटे और बेटियां अच्छे मुस्तकबिल पाएँ, अच्छे रोज़गार मिलें और इम्तहानात में और तालीम में कामयाबी हासिल करें। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।